بہت بہت شکریہ. یہ اصل میں آج کی پریس کانفرنس کنٹینیوٹی ہے. جو پرسوں ہم نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں میں نے آپ کو کچھ آگاہ کیا تھا کہ پہلی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم پروموٹ کر دیں گے بغیر امتحانات کے، لیکن 9ویں سے لے کے 12ویں جماعت کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ اس میں ایشوز تھے. اور سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو قانون ہے اس میں ایسا کوئی پروویژن نہیں ہے کہ جس میں بغیر امتحان کے بچوں کو اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جا سکے. اس پر تو ہم کام کر رہے ہیں، لیکن جو وفاقی وزیر ہیں شفقت محمود صاحب، انہوں نے پہلے بھی میٹنگ کی تھی، آج بھی میٹنگ کی، اور ہم نے اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کی جو میٹنگ کی تھی پرسوں، اس میں ایک کمیٹی بنائی تھی جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، جس میں تمام جو ایگزامینیشن بورڈز ہیں ہمارے ان کے چیئرمینز اس کے اندر شامل تھے، اور ہمارے سیکرٹری اسکول، سیکرٹری کالجز اور سیکرٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈز، یہ تینوں سیکرٹریز اس میں شامل تھے. انہوں نے اپنی میٹنگ کل کی اور اس میٹنگ میں کچھ انہوں نے پروپوزلز دیے جو آج ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو میٹنگ تھی اس میں بھی رکھے، لیکن پھر میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو بھی ان سے آگاہ کر دوں. اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ضرور ہمیں دیکھنی ہے. ایک تو 9ویں جماعت کا جو طالب علم ہے وہ 10ویں جماعت میں چلا جائے گا جو اس کا رزلٹ ہوگا 9th کلاس کا اس کی بنیاد پر، اور اسی طرح سے جو 11ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوگا وہ 12ویں کلاس میں چلا جائے گا اپنے 10ویں کلاس کا جو رزلٹ اس کا ہوگا اس کی بنیاد پہ 11ویں میں جائے گا، اور 11ویں والے کا جو رزلٹ ہوگا اس کی بنیاد پہ وہ 12ویں میں چلا جائے گا. اس میں ہم نے تجویز یہ دی تھی کہ 2.5% جو ہے وہ اس کی پرسنٹیج میں اضافہ کیا جائے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو امپرومنٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ 9ویں جماعت کا جو اسٹوڈنٹ، جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا 10ویں میں پرسنٹیج ان کی انکریز ہوتی ہے. اسی طرح جو 11ویں جماعت کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب وہ 12ویں میں جاتے ہیں تو 12ویں میں ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے. وہ محنت کرتے ہیں، ظاہر ان کو آگے ایڈمیشنز کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھ کے کافی اس پہ انہوں نے جو کمیٹی ہم نے بنائی تھی انہوں نے کافی اس پہ کام کیا، اور یہ طے پایا کہ ہم 2.5% کریں گے. لیکن جو آج وفاقی حکومت کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس پہ کنسنسس یہ ہوا ہے کہ 3% جو ہے اس کو ایڈیشنل پرسنٹیج اس کو دیں گے، یہ اکراس دا بورڈ ہوگی، یہ سب کو ہو جائے گی. اچھا، اس میں جو ایک ایشوز ابھی ہیں 2-3 جس کو ہم بیٹھ کے ریزالو کریں گے. ایک تو جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کچھ ہمارے نظر میں کچھ مسائل ہیں، اس کو ہم حل کرنے کے لیے مزید ہماری جو سب کمیٹی ہے، جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ اس پہ مزید کام کرے گی، اور جو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ایشوز آئیں گے اس کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس میں تھوڑے سے شاید پرابلمز اور بھی لوگوں کو درپیش ہوں گے، لیکن میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ حالات ظاہر نارمل نہیں. ایک وہ چیز ہے جس میں ہم کئی دہائیوں سے چلتے ہوئے آنے ایک سسٹم بنا ہوا ہے، سسٹم کے تحت ہم آگے بڑھ رہے تھے، لیکن آل آف سڈن یہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہمیں وہ پورا جو ہمارا ایک نظام ہے امتحانات کا، نتائج کا، وہ سارے کا سارا ڈسٹرب ہوا ہے. تو ایک نئی چیز انٹروڈیوس کی ہے، اس میں کوشش کی ہے، حتی الامکان کوشش کی ہے کہ جو ہم کریں اس میں کم سے کم مسائل اور مشکلات اسٹوڈنٹس کو ہوں. لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ابھی بھی ہمارے نظر میں ہیں جس کی وجہ سے کچھ پرابلمز جو ہے وہ آ سکتی ہیں. اس کو حل کرنے کے لیے مزید میٹنگز ہماری یہ کمیٹیز کریں گی، اور ان کی پھر جو ریکمنڈیشن آئیں گی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پرابلمز ہوں گے ان کو ہم ختم کر دیں گے. اور کوئی چیز اس میں جی تو کوئی سوال آپ کا ہو تو میں سر یہ کلیئر کر دیں کہ یہ 3% والا جو اضافہ ہے کریں گے، یہ 9th میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سب کے لیے ہوگا جی. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے جس نے 9th میں، مثال کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کی 60% ہے، اور وہ کوشش کرے گا کہ جی جب 10ویں کا امتحان دے تو اس کو امپروو کرنے کے لیے محنت کرے گا تاکہ داخلہ واخلہ کہیں ہو جائے، تو وہ ایگزام نہیں دے پا رہا ہے. تو ہم نے اس کو 3% اضافی دے دیا تو اس کی 63% ہو جائے گی جب وہ ہوگا 10ویں کا. جب اس کو ہم دیں گے تو اس کی پرسنٹیج اتنی ہو جائے گی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں ہم ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، HEC کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں.
تاکہ جو امتحانات انہوں نے لینے ہیں ایڈمیشنز کے لیے میڈیکل میں انجینئرنگ میں اور دیگر جو فیلڈز ہیں اس کے اندر جو ایڈمیشنز ہوں گے اس کو بھی ہم کسی طرح سے ان کو اس میں اکوموڈیٹ کریں, اس میں بھی زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو جائے, اور ظاہر ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی فیور بھی نہ ہو جائے, کوئی ایسا طریقہ بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل کالجز ہیں ان کو بھی ہم آن بورڈ لے رہے ہیں تاکہ ان کا بھی کوئی میکانزم اسی طرح کا بنا دیا جائے تاکہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو بغیر اگر ایگزامس وہاں بھی نہیں ہو رہے ہیں تو وہ بھی کسی طرح آگے چلے جائیں. ایک تجویز اور بھی ہے لیکن میرا ذاتی خیال یہ کہ شاید وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہوگی, وہ یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو اپیئر ہونا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اپنی جو پرسنٹیج ہے اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے تو کوئی اسپیشل ایگزامس کروائے جائیں. اس میں اب یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ حالات ایسے ہوں تاکہ ہم امتحان لینے کے قابل ہو جائیں, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے لیے وہ بھی مشکل ہوگا. لیکن میں نے بتایا نا کہ کچھ ایشوز ضرور ایسے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اس کے لیے ہم جو ہے وہ اپنی کمیٹی کو ہم نے پھر کہا ہے کہ وہ بیٹھیں. اچھا, ایک اور بھی مسئلہ شاید آپ سوال بھی مجھ سے کر لیں کہ کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو کچھ پیپرز میں فیل ہیں, کہ ایک دو پیپرز میں وہ فیل ہو گئے, تو ان کے لیے یہ رائے ہے کہ اگر کوئی ایک دو پیپرز میں فیل ہے تو ہم اس کو پاسنگ مارکس دے کے اس کو ہم آگے پروموٹ کر دیں اس اگلی کلاس کے اندر, اس کو پاسنگ مارکس دیں. آنے والے دنوں میں جو کالجز کے داخلہ ہوں گے وہ کس کرائٹیریا پہ ہوں گے؟ مطلب جو پرانا سسٹم چل رہا تھا, کیونکہ ابھی تو آپ پروموٹ کر رہے ہو, پھر جب اگر اسٹوڈنٹس کو جو کالجز میں داخلہ لینے کے لیے تو کیا کس طرح وہ مطلب پسندیدہ نہیں, دیکھیں میں نے آپ کو ایک بتایا کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ 3% اضافی نمبر دے کے ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اب جس کالج میں ایڈمیشن جس پرسنٹیج پہ ہو رہا ہے اسی پرسنٹیج کے مطابق ہو جائے گا. اچھا, جو میڈیکل کے ایڈمیشنز ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں الگ سے, اور ان ٹیسٹ میں جو بچہ یا بچی ایک ان کی جو اسٹینڈرڈ ان کا ہوتا ہے ایڈمیشنز کا, اس کے مطابق اگر وہ نمبرز لے لیں گے تو وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں, اگر وہ نہیں لیں گے تو نہیں کریں گے. تو ان کا اپنا ایک سسٹم ہے, وہ تو فالو کریں گے, اس میں ہم نہیں چاہیں گے کوئی کمپرومائز ہو, اس لیے کہ یہ میڈیکل میں انجینئرنگ میں جو ہے وہ اسی طرح کا چلتا رہے گا. کل کھاں ودیک اتے صورتحال جکا ہے خراب آ کے اس ایس او پی تے عمل نہ پیو ٿے. چھا جکے بیو تا کل مارکیٹوں खे सील कयूं ईअं ई मार्केटूं सील कंदा वेंदव या इन सूरत हाल में का बहितरी आणींदव? ॿियो नंढिड़ो सुवाल मुंहिंजो इहो आहे, IB पास जेके हेड मास्टर आहिनि उन्हनि खे जुलाई ताईं एक्सटेंशन ॾिनी हुई, 1 महीनो उन्हनि में जी बचियो आहे. छा हाणे उन्हनि खे तव्हां पंहिंजो एक्सटेंशन ॾींदव, मुस्तकिल कंदव, छा कंदव हिननि जो, छा कंदव? دیکھیں, ایک تو جو مارکیٹس کی آپ نے بات کی ہے نا, مارکیٹس ہم جو ہماری یہیں پہ اسی ہال میں تمام تاج تنظیموں کے نمائندے آئے تھے, چیف منسٹر صاحب بیٹھے تھے, اور اس سے پہلے جب ہم سے انہوں نے ملاقات کی تھی کیبنٹ کے کچھ ممبر سے, اس میں بھی ہم نے ان کو کہا تھا, اور بار بار ڈیمانڈ بھی وہ یہ کرتے تھے کہ آپ ہمیں کاروبار کرنے کی اجازت دیں اور سخت سے سخت SOPs بنائیں, ہم اس پہ عمل کریں گے. یہ ان کی اپنی ڈیمانڈ بھی تھی اور ان کی خواہش بھی تھی. ہم نے ان کے کہنے پر ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی اور SOPs بنائیں. اب SOPs پر عمل درآمد کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پہ کریں. جب 2-3 دن نہیں ہوا تو ہم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کی جو وائرس پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں آپ کی یہ دکانیں اور مارکیٹس, اور ان کو اعتماد میں لے کر ہم نے کل جو ہے وہ 7 کے قریب بازار جو ہیں وہ ساؤتھ میں سیل کیے اور کچھ دکانیں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہم نے سیل کی تھی, بڑی دکانیں. اور یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی تاجر اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کو SOPs فالو کرنے ہوں گے. اگر وہ فالو نہیں کریں گے ہم دکانیں سیل بھی کریں گے, ہم جرمانے بھی کریں گے, اور جو اقدامات حکومت کر سکتی ہے وہ کرے گی. دوسرا, جو آپ نے IBA کے تھرو جو اپوائنٹ ہوئے تھے ہمارے ہیڈ ماسٹرز, ان کی بات کی, اس پر ہم بالکل کلیئر ہیں, ہم ان کو ریگولر کریں گے, ہم ان کو کرنا چاہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ایسے طریقہ کار سے ہم کریں گے جس سے آگے چل کر ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں. اب تو یہ صورتحال بھی ہوتی ہے کہ ایک فیصلہ آج اگر کوئی ہو جائے تو 5 سال بعد, 10 سال بعد, 15 سال بعد بھی ایک عدالت کا فیصلہ کوئی آ سکتا ہے اگر ہم نے وہ کام غلط طریقے سے کیا ہوگا. تو ہماری خواہش صرف اتنی ہے کہ اگر ہم کوئی ایک کام کریں, ان کو اگر ریگولائز کریں تو کسی ایسے طریقے سے کریں جس سے آگے چل کر ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں اور وہ پرماننٹلی ان کے سر پہ کوئی تلوار لٹکی ہوئی نہ ہو. وہ ہم انشاءاللہ کریں گے, ان کے ساتھ پوری ہمدردیاں ہماری شامل ہیں. دوسرا, آپ نے کہا کہ وہ جولائی میں اگر وہ ختم ہو رہا ہے, وہ انشاءاللہ تعالی ہم وہ ایشو نہیں ہے,
हम उनको कंटिन्यू भी करेंगे और उनको रेगुलाइज भी कर देंगे। जी जाते जरा ये वजाहत करते जाएं, जिसने नवी जमात में 60% नंबर लिए, नवी जमात के भी 3% इजाफा होगा, फिर 10वीं में भी 3% इजाफा होगा। देखें, अगर नवी जमात के पेपर्स नहीं हो रहे हैं, मेरा सवाल पूरा जी, एक तो ये है कि नवी जमात के उन्होंने किसी ने 60% नंबर लिए, अब उसको 10वीं में पास कर रहे हैं आप, तो टोटल जो एग्रीगेट होगा वो 63% होगा। देखिए दूसरा ये है कि अगर कोई किसी भी वजह से एब्सेंट रहा है नवी में, वो पेपर नहीं दे सका है, बीमार हो गया है, कुछ हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, उसके लिए क्या है, या कोई पेपर में अपीयर ही नहीं हुआ। मैं सॉरी, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, मेरे ख्याल है मैंने ज़्यादा इसकी वजाहत नहीं की, मैं और इसको क्लियरिफाई कर देता हूँ। देखें, जो 10वीं जमात में है इस वक्त या जो 12वीं जमात में है इस वक्त, उसके लिए हमारे पास रिज़ल्ट मौजूद है। 12वीं वाले का 11वीं जमात का रिज़ल्ट है और 10वीं जमात वाले का 9वीं जमात का रिज़ल्ट है, दोनों रिज़ल्ट उसके हमारे पास मौजूद है। तो अगर किसी ने 9वीं जमात में 60% लिया था, तो जब हम उसको प्रमोट करेंगे, मतलब 10वीं से चला जाएगा, वो 11वीं में जाएगा। वो इस वक्त 10वीं में था, 10वीं का इम्तिहान नहीं हुआ, अब उसको 11वीं में जाना है। तो जब वो 11वीं में जाएगा तो उसको 3% इजाफी परसेंटेज हम दे देंगे। वो अगर 60 थी तो उसकी 63 हो जाएगी। सिमिलरली जो 12वीं जमात में था, उसका जो 11वीं जमात का रिज़ल्ट है, उसमें 3% ऐड करके उसको हम आगे 12वीं का एग्ज़ाम नहीं होगा और आगे चला जाएगा। लेकिन जो 9वीं जमात में इस वक्त है, उसका हमारे पास कोई रिज़ल्ट नहीं है, तो उनको जो हम पास करेंगे उसको कोई परसेंटेज हम नहीं दे सकते हैं। ज़ाहिर है कि कोई हमारे पास बेस उसकी नहीं है, और उसको हम वैसे ही पास करेंगे और वो पास और फेल की बुनियाद पर वो होगा और वो आगे चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है, मैं उसकी वजाहत नहीं कर सका था, अब शायद क्लियर हो गया ये। जी, अगले साल तो अल्लाह खैर करे, हालात ठीक होंगे तो ज़रूर देगा। तो उसकी परसेंटेज कैसे बनेगी फिर वो 10वीं वाले पे? जी जी, 10वीं पे, जो 10वीं पे होगा उसी पे, उस पे करेगा, उस पे करेगा। सही साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके से कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल और असातिज़ा भी परेशान है, जिस तरीके से आज सेक्रेटरी कॉलेज ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि तमाम जितने भी रीजनल डायरेक्टर्स हैं वो जीपी फंड, प्रमोशंस और जो दीगर मामलात हैं उनके जो फाइल्स हैं, रिक्रूटमेंट्स हैं या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी करके सेक्रेटरी की तरफ भेजे। तो प्रिंसिपल और असातिज़ा भी परेशान है कि आया ऑफिसेस खोलने हैं, प्रिंसिपल कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी डिटेल्स है घर पे तो मौजूद नहीं है, जाहिर सी बात है उसके लिए डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए कॉलेज खोलना। ये तो ऑफिस तो खुलेंगे ना हमारे। देखिए, अभी ऑफिस खुलना शुरू हो गए हैं ना, हुकूमत सिंध के कई ऑफिस खुल गए हैं कॉलेज एजुकेशन और खुल जाएंगे ना। मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑफिस खुलना शुरू हो गए हमारे। नहीं तो कोई हर्ज नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि 24 घंटे में दे दो। हाँ जी, हुकूमत की पाबंदी के बावजूद जुलूस निकाले जा रहे हैं। सखर में भी आज उमेली के हवाले से जुलूस निकला है और कल कराची में भी जुलूस निकलने की बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, कैसे सिंध हुकूमत रोकेगी? देखें, आपको ये इल्म है कि ये पूरे पाकिस्तान में जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें तय हुआ कि किसी भी किस्म के जो इज्तमात हैं उस पर पाबंदी है, जिसमें इज्तमात भी हैं और जलसे भी हैं, जुलूस भी हैं, सारे शामिल हैं। अब इसमें ये जिम्मेदारी सबकी बनती है, हुकूमत की भी है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, लेकिन शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें हमारी मदद करें। देखें, जब तक हालात नॉर्मल थे, सारी चीज़ें हो रही थी, सियासी जलसे भी होते थे, मजहबी इज्तिमात भी होते थे, तरावियाँ भी हो रही थी और हर किस्म का इज्तिमा जो है उस पर हो रहा था और किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। अगर कोरोना की वजह से हालात इस तरह के हो गए हैं कि हम ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की इजाज़त दें, और ये पूरे मुल्क में है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पहले भी उलमाए कराम ने हमसे बहुत ताउन किया। देखें, जब हुकूमत ने ये कहा कि जी मस्जिद में सिर्फ मुतय्यन अफराद जो है वो नमाज जमात अदा करेंगे, 3 होंगे या 5 होंगे, तो अगर उलमाए कराम या शहरी ताउन नहीं करते तो हुकूमत ज़बरदस्ती तो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती थी। मतलब लाखों की तादाद में लोग जाते हैं हर मस्जिदों मसाजिद के अंदर, तो हमारे लिए मुमकिन तो नहीं था ज़बरदस्ती हम उसमें इम्प्लीमेंट कराते। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं शहरियों के भी, उलमाए कराम के भी, कि उन्होंने ताउन किया, मदद की और उन्होंने हुकूमत का जो फैसला था उसको तस्लीम किया लोगों के हक में। इसी तरह अगर हुकूमत सिंध ने यह कहा कि जी तरावियाँ जो हैं लोग घरों पे पढ़ें, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं शहरियों का भी, उलमाए कराम का भी, कि उन्होंने हुकूमत सिंध के इस फैसले पर अमल दरामद किया
अगर हुकूमत सिंध ने ये फैसला किया कि जुम्मे के रोज़ 12 बजे से 3 बजे तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा ताकि लोग कम से कम घरों से बाहर निकलें, तो लोगों ने भी ताउन किया, उलमाए कराम ने भी ताउन किया और इज्तिमाई तौर पर, मजमूई तौर पर एक अच्छा उसका जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो बेहतर थी। मैं ज़रा पूरी करूँ तो इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो बेहतर तरीके से हो गई। इसी तरह अगर जुलूस पर और या किसी भी किस्म की गैदरिंग पर, इज्तिमा पर पाबंदी है तो ये जिम्मेदारी बनती है उलमाए कराम की भी, शहरियों की भी, कि वो हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद करवाने में हमारी मदद करें ताकि हम अपने शहरियों को इस कोरोना वायरस की वबा से बचा सकें। जी साहब ये बता दीजिएगा, जब से आप लोगों ने लॉकडाउन में नरमी करी है, शहर के बाजारों में रश है, SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो किस तरह देखते हैं, क्या दोबारा लॉकडाउन सख्त किया जाएगा या मामला तब कर्फ्यू की तरफ जाएंगे? देखें, ये ख्वाहिश थी बहुत सारे लोगों की भी, जो कारोबारी हजरात हैं उनकी भी, और यकीनन हमारे वज़ीर आज़म साहब की भी, कि कारोबार खुलना चाहिए। लोगों की मुश्किलात तो बहरहाल थी, हम भी मानते हैं इस बात को। लेकिन जो कुछ अब हो रहा है पूरे मुल्क में, मैं सिर्फ सूबा सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, जिस तरह बाज़ारों में जा रहे हैं, जिस तरह खुल्लम खुल्ला जो है वो, मैं समझता हूँ कि अपने आप को वो एक्सपोज कर रहे हैं इस वायरस को लेने के लिए, ये बहुत ख़तरनाक बात है। ये जिम्मेदारी हुकूमतों की भी बनती है, इंतज़ामिया की भी बनती है, लेकिन शहरियों की भी बनती है। अगर शहरी इस किस्म की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो हुकूमतों के पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं होगा कि हम दोबारा सख्ती करें और शायद पहले से ज़्यादा सख्ती करें। लेकिन ये फैसला करना एक सूबाई हुकूमत के लिए शायद मुश्किल होगा। अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो मैं समझता हूँ कि बाकी सूबे भी और इवन वफाकी हुकूमत भी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये बात करने पर मजबूर होगी कि हम कोई सख्त फैसला करें। मैंने पंजाब के मिनिस्टर को भी कल सुना, वो भी बहुत ज़्यादा नाला थे, उनको भी गिला था ट्रेडर्स के साथ कि जी आप ये गलत कर रहे हैं, हमने अगर ये फैसला किया था कि कारोबार हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इस तरह से आप हर चीज़ को वायलेट करें। इसी तरह KP में भी प्रॉब्लम है, इस्लामाबाद में भी प्रॉब्लम है। तो ये डिपेंड करता है शहरियों के अपने रवैये के ऊपर, जो ट्रेडर्स हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उनके अपने रवैये के ऊपर कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं हुकूमत की जो एहतियाती तदाबीर है उसके ऊपर। तो ये डिपेंड करता है हालात के ऊपर। मैं अभी बैठ के नहीं कहता हूँ कलम बंद कर देंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कलम खोल देंगे। अगर रवैया अच्छा रहा, एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई, तो ये मुमकिन है कि मज़ीद कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी। लेकिन अगर इसी तरह की सूरत हाल रही और लोग आपस में मिलते जुलते रहे और हालात ख़राब रहे तो मुमकिन है कि मज़ीद सख्तियाँ करनी पड़ें। ठीक है जी। शहजाद साहब ये बताइएगा कि अली आदिल शेख के हवाले से एक रिपोर्ट गर्दिश में एंटी करप्शन की, ये वही अली आदिल शेख हैं कि वज़ीर आला साबिक वज़ीर आला मुराद कायम अली शाह उनकी भी काबीना में थे, तो उस वक्त क्या वजह है कि इस तरह की रिपोर्टें नहीं है, आ जाने की क्या वजूहत है, इतनी ताक़ीद से क्यों? आप ही की हुकूमत है तकरीबन 15। ये तो देखें, ये तो डिपेंड, ये NFC अवार्ड के हवाले से बताइएगा कि जो सिंध अपना सदर साहब ने तश्कील दी उस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं या नहीं है, तो कबूल करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर एक जुर्म किसी ने 5 साल 10 साल पहले भी किया हो और किसी को पता ना हो और 5 साल बाद पता चले, तो आप इस बुनियाद पे तो उसको नहीं माफ़ कर सकते जी क्योंकि 5 साल पहले हुआ था। अगर तहकीकात हुई हैं और तहकीकात के नतीजे में ये चीज़ें सामने आई हैं कि उन्होंने ज़मीनों पर कब्ज़े किए हैं और इसके वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, PMLN के खिलाफ हो सकती है, सरकारी अफसरों के खिलाफ हो सकती है, सहाफ़ियों के खिलाफ हो सकती है, चैनल के मालिकान के खिलाफ हो सकती है। तो ये तो नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई शख्स अपोजिशन में है और उसने ज़मीन पर कब्जा किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। दूसरा जो आपने NFC का सवाल किया, देखिए मैंने जो पढ़ा नेशनल फाइनेंस कमीशन के उस आर्टिकल को, ग़ालिबन 160 है, उसके मुताबिक जो TORs होने चाहिए, इन TORs में शायद थोड़ा सा उसको बढ़ा के पे दिया गया है। लेकिन इस पर हुकूमत सिंध अपना एक ऑफिशियल जवाब उनको भेजेगी, मेरा ख्याल है वो आ जाएगा तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा कि फिर उसके बाद हम उस पर बात कर लेंगे। ये बता दीजिएगा कि माज़रत कबूल किया आपके इसलिए कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपके पास मास्क का मामला होता है,
मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिट में सीट्स भी कम होती है, तो इस नए फार्मूले के तहत किस तरह उन्हें मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, लेकिन ये कि यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन्स होते हैं या मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं, उनका अपना एक तरीक़ेकार है और वो अपना टेस्ट अलग से लेते हैं। वो सिर्फ इस परसेंटेज की बुनियाद पर नहीं करते हैं। हम उनसे भी राब्ते में हैं कि अगर ये जो हम प्रमोट कर रहे हैं बच्चों को बगैर इम्तिहान के, उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे, हम उसके साथ राब्ते में हैं। अच्छा, शुगर सब्सिडी के हवाले से हुकूमत सिंध का ये दावा है कि 17, 18, 19 में तकरीबन हमने कोई सब्सिडी नहीं दी है, ठीक है, ये हुकूमत सिंध का दावा है। लेकिन अली मादिल शेख अभी कह रहे थे कि जनवरी के महीने में जो आपकी काबीना का इजलास हो उसमें 4 अरब रुपए जो है सब्सिडी दी है। क्या हकीकत है? आप एक तरफ दावा कर रहे हो कि हमने नहीं दिए, अगर नहीं दिए तो फिर वो दावा किस तरह कर रहे हैं वो? देखें, पहले आप आ जाएं वो जो कमीशन वज़ीर आज़म साहब ने बनाया, चीनी की कीमतें बढ़ी, उन चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ उस पर वज़ीर आज़म साहब ने एक कमीशन बनाया कि आप तहकीकात करें कि ये क्यों हुआ है, और फिर उसके अंदर उसके TORs बनाए गए। उसके TORs में ये लिखा हुआ है कि साल 2018 और 19, 2018 और 2019 के साल में जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ या सब्सिडी दी गई उस पर आप तहकीकात करें। साल 2018 और 19 में सूबा सिंध की हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी, और कानून के मुताबिक जो भी इस किस्म के कमीशन बनते हैं वो अपने TOR से बाहर नहीं जा सकते हैं। या तो उस कमीशन के TORs को चेंज किया जाए और बताया जाए कि नहीं, ये 1947 से लेकर 2020 तक जितनी भी सब्सिडीज़ हुई हैं, चीज़ें हुई, उसकी तहकीकात करेगा, फिर तो चलें, ठीक है, सबको बुला लें। लेकिन अगर उसके TORs में लिखा हुआ है कि साल 2018 और 19 पे आप करें, तो फिर उससे पिछले सालों में वो नहीं जा सकते, नंबर 1। दूसरी बात, जो उन्होंने, जिनका आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा है, वो भी सब्सिडी गुज़िश्ता बरसों की थी जो पेंडिंग थी, जो ड्यू थे हमारे पर, जो ड्यूज थे पिछले, उसमें सब्सिडी ऐसी थी कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी दी थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी दी थी, और जो पैसे फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर वाजिबुल अदा थे वो फेडरल गवर्नमेंट ने अदा कर दिए थे थ्रू स्टेट बैंक, और हमने भी थ्रू स्टेट बैंक ही देने थे। सिंध गवर्नमेंट ने अपनी अदायगियाँ नहीं की थी, तो वो जो पिछली अदायगियाँ थीं वो हमने की हैं। 2018 और 19 में या 19 और 20 में सिंध हुकूमत ने चीनी के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं दी है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। सही भाई, कल परसों जो है वो एक डैम की इनॉग्रेशन की गई है और बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं वहाँ पे, लेकिन सिंध हुकूमत इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है कि जो डैम तामीर हो रहा है और जो 91 वाटर अकॉर्ड है उसकी पासदारी क्या हो रही है? क्या आप उससे आपको इत्मीनान है सिंध हुकूमत को? और अगर ये डैम बनेगा, क्या जो डेल्टा में पानी आना चाहिए और जो अकॉर्ड के मुताबिक सिंध का पानी है वो आएगा, उसके हवाले से सिंध की क्या पॉलिसी? देखें, इस पर जो डैम का इफ्तिताह हुआ इस पर आप देखें, मैं समझता हूँ कि ये जो डैम के ऊपर आप मौक़िफ़ ले रहे हैं, मैंने इसको भी तफसील से देखा नहीं, तो मुनासिब नहीं है कि मैं इस पर बात कर लूँ। इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ सिंध हुकूमत इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ दे देगी। लेकिन दूसरी बात आपकी है कि 1991 का जो वाटर अकॉर्ड है उसके ऊपर अमल दरामद उस तरह से नहीं हो रहा, उसके ऊपर रिजर्वेशन हम वक्तन फ़वक्तन शो करते भी रहते हैं और अपने एतराज़ात उठाते भी रहते हैं। सही भाई, ये बताइएगा, हेल्थ के इशूज़, ज़ाहिर सी बात है वो हेल्थ मिनिस्टर से रिलेटेड है, लेकिन सिंध की बाकी तमाम वज़रा जो हेल्थ के इशूज़ पे मीडिया से बात करते रहते हैं, हेल्थ की वज़ीर खुद कहाँ गायब है, आइसोलेशन में? अच्छा, इसी के साथ आप अटैच कर लें एक छोटा सा सवाल। पीर जो गोट का स्कैंडल जो है वो आपके पहले उसकी बात कर लो। इसी के साथ ही है सर। 88 दोबारा टेस्ट जब किए गए वहाँ के, तो उसमें से 27 मैं बताया तो देखिए, पहली बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि हमारी हेल्थ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा फ़ाल हैं और जो उनका काम है वो बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। इस कोरोना के पूरे इशू पर जब से ये शुरू हुआ है 26 फरवरी से 27 फरवरी से, जब से हुकूमत सिंध ने इस पर प्रोएक्टिवली काम किया है, चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में जितने भी मिनिस्टर्स ने काम किया है उनमें सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से, फ़ाल तरीके से अपने डिपार्टमेंट को जिस तरह उन्होंने मैनेज किया है, काम किया है, उसमें हेल्थ मिनिस्टर साहिबा शामिल है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स जो है वो टीवी पर नज़र आए। हम फेडरल गवर्नमेंट से पूछते हैं वज़ीर आज़म असम्बली में क्यों नहीं आया, वो कहते हैं बहुत ज़रूरी काम था, वहाँ कर रहा था। हम उनसे पूछते हैं कि जी वो हेल्थ मिनिस्टर हैं और असम्बली का इजलास कोरोना पे बुलाया गया है, तो असम्बली में आकर वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं, वो कोई और बहुत ज़रूरी काम कर रहा था।
हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने जब जब असम्बली का इजलास हुआ है अपने महकमे के मुतल्लिक जिस तफसील के साथ जिस मुदल्लल तरीके से ब्रीफिंग हाउस को दी है, शायद किसी और सूबे का वजीर या वफाकी वजीर सेहत नहीं दे पा रहे हैं। और अब भी अगर असम्बली का इजलास होगा मुनक़िद, आप देखेंगे कि हमारी हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो बड़ी तफसील के साथ पूरे हाउस को एतमाद में लेंगी, पूरे सूबे के लोगों को एतमाद में लेंगी, पूरे मुल्क के लोगों को बताएंगी कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो वो बहुत ज़्यादा काम अपना कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स, मेरे जितना मुझे शौक़ है टीवी पे आने का, हर आदमी को इतना ही शौक़ हो। वो काम ज़्यादा करती हैं, मैं ज़रा शायद काम उनके मुकाबले में कम करता हूँ। थैंक यू जी। हाँ सॉरी, ये पीर जो कोट वाली बात। अच्छा, ये सवाल पूछा आपने। देखिए, मैंने जो तफसीलात थी कुछ देर पहले तक, उसमें 50 के करीब जो थे जो पीर जो गोट के जो सैंपल्स थे वो कराची में दोबारा टेस्ट हुए 50 के करीब। हो सकता है उसके बाद नंबर बढ़ गया हो जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो मैंने जब मालूम किया था 50 थे। उन 50 में से 15 जो हैं वो पॉजिटिव हैं और बाकी नेगेटिव हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं सारे, इनका पहला जो टेस्ट हुआ था वो आज से 10 रोज कबल हुआ था। 8 मई को हुआ था। 8 मई को हुआ था। आज क्या डेट है? 8 मई को। आज क्या डेट है? 14 है। 6 दिन। मैं जो बता रहा हूँ आपको, ज़रूरी नहीं कि सारे 8 को हुए हैं, हो सकता है कुछ उससे पहले भी हों। उसमें जो नेगेटिव हुए हैं, जो नेगेटिव हो जाते हैं, उस पर WHO का स्टैंडर्ड ये है, SOPs उनके ये हैं कि उसका सेकंड टेस्ट आप लेते हैं दोबारा रिकन्फर्म करने के लिए कि ये वाकई नेगेटिव है। तो जिनके नेगेटिव आए हैं उनका दोबारा एक टेस्ट होगा और उसके बाद आप कह सकेंगे कि हाँ ये बिल्कुल क्लियर हो गए, चले गए। अच्छा, ये कोरोना का टेस्ट अगर एक किसी का होता है तो जिस दिन हम टेस्ट करते हैं ज़रूरी नहीं है कि ये वायरस उसी दिन वायरस ने उसको अटैक किया हो। ये पॉसिबिलिटी होती है कि उसको ये 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पहले से हो। और 15 दिन का ये जो एक साइकिल बताते हैं, वो 15 दिन, ज़रूरी नहीं कि जिस दिन आप टेस्ट करें उसके 15 दिन के बाद दूसरा टेस्ट होगा तो वो नेगेटिव होगा। वो 10 दिन भी हो सकते हैं, वो 8 दिन भी हो सकते हैं, वो 9 दिन भी हो सकते हैं, और बाज़ केसेस में तो शायद कुछ 2-4 दिन भी हो सकते हैं। कि अभी गवर्नर साहब का जो आपने सुना, जब उन्होंने एक टेस्ट अपना करवाया दूसरा तो वो पॉजिटिव था और उसके कुछ ही दिनों बाद, शायद 2-3 दिन के बाद दोबारा कराया तो नेगेटिव हो गए वो। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वो पॉजिटिव था तो 3 दिन के बाद नेगेटिव कैसे हो गया। इसलिए नेगेटिव हो गए कि वो पहले से चलता हुआ आ रहा था उनका। इसी तरह फैसल ईदी साहब का जब टेस्ट हुआ तो जब पहला टेस्ट हुआ वो पॉजिटिव थे, फिर दूसरा टेस्ट हुआ कुछ दिनों बाद, 7-8 दिन के बाद वो पॉजिटिव थे, फिर जब 3-4 दिन के बाद उनका टेस्ट हुआ तो नेगेटिव हो गए थे। तो ये 15 दिन का साइकिल ज़रूर होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो वायरस किस दिन उसको वो वायरस लगा था और उसके बाद 15 दिन का होता है। तो ये समझ लेना कि जी वो सारे के सारे टेस्ट गलत थे, इन टेस्टों से ये कतन साबित नहीं होता। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, ये जो मीटिंग्स में मैं बैठता रहा, जो मैंने सुना है, जो एक्यूरेसी है इस टेस्ट की वो 70% है, और ये दुनिया भर में है, सिर्फ यहाँ नहीं, ये दुनिया भर में ये एक्यूरेसी 70% है। अच्छा, हमारे यहाँ सूबा सिंध में ख़ास तौर पे चूँकि लोगों ने ये तय किया हुआ है कि हमने इसको मुतनाज़ा बनाना है, हमने इस पर शोर करना है, तो ये चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में जो अपोजिशन है वो इंतहाई जिम्मेदार है। इस इशू पर हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे हैं, इस इशू पर हम हुकूमतों को ख़राब करने में नहीं तुले हुए हैं। अगर वहाँ पर भी ये चीज़ें हम निकालना शुरू कर दें तो आपको शायद सूबा सिंध के मुकाबले में ज़्यादा खराबियाँ वहाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो मैं बार बार यहाँ कहता हूँ ना कि ये कोई PTI की और कोरोना की बहुत करीबी रिश्तेदारी है। मतलब मैं बुरा बोलता हूँ कोरोना को, PTI मुझ पर पड़ जाती है। डॉक्टर्स बेचारे, मोतबर डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ कोरोना के खिलाफ करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, PTI उनके पीछे पड़ जाती है। किसी इदारे की रिपोर्ट आती है कोरोना के खिलाफ, PTI उसके पीछे पड़ जाती है। तो इनको पता नहीं क्यों इतना नागवार गुजरता है कि हम कोरोना को बुरा क्यों कहते हैं, हम कोरोना को खतरनाक क्यों कहते हैं, हम कोरोना को पाकिस्तान के मुल्क के जो शहरी हैं उनका दुश्मन क्यों कहते हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे इन PTI के लोगों से, आपका अजीज तरीन कोरोना जो है वो मुल्क के लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। खुदा के लिए हमें इससे लड़ने दो। अगर आप हमारे साथ खड़े होकर उससे लड़ नहीं सकते, आपको बुरा लगता है, तो कम से कम खामोश बैठ जाओ ताकि हम आपके इस अजीज से लड़ें और इसके मुल्क के लोगों की जान छुड़ाएं। सवाल ये है, थैंक यू।